हाँ भाई क्या हाल है भैया. सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क अंजी स्वैग एंड टुडेज एपिसोड इज अ बिट स्पेशल बिकॉज आप में से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते थे कि लाइक ऑल्दो आई गेट टू आंसर फॉर बोथ मेन एंड वुमेन मगर इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ वुमेन्स perspective as well. And some of you requested that my wife should be a part of the podcast. तो मैंने बोला चलो ठीक है, let's discuss. And she finally agreed. Thank you so much for being here. Thank you for having me. अभी रात के 11:30 हो रहे हैं, सबको सुला के हम अभी ये रिकॉर्ड करें. इट वाज वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ. कितना था टेम्परेचर आज? -1. -1. आई थिंक आई बीन इन -4 इन कायरो. दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो. आज बहुत सर्दी थी बट थैंकफुली यू आर स्टिल हॉट. सो I'm good. I'm settled. So we're gonna, so like as you know the format of the show. Yeah. And like people send me emails and like I feel really humbled कि people trust me so much with so much dark shit going on in their life. And I feel कि ना लोगों के पास बात करने वाला कोई नहीं है. And that's what I try to like tell other people as well. And so obviously I'm not an expert and neither are you. It's just whatever experience we have in life हम उसी को ही share करते हैं. And obviously this is not a final word of advice. We are not professionals. We are not relationship advisors. Of course. So let's start with today's emails. ये देख रही हैं आप कितनी सारी आई हुई हैं. Okay, so the first one says toxic future mother-in-law, low self-esteem. Okay, Assalamu alaikum Junaid bhai. I belong to a middle-class family. I have a master's degree from a reputable university, but currently I am jobless. अच्छा, jobless नहीं कहते. You say we're in between jobs. In between jobs. है ना? You don't call yourself jobless. है ना? It's a very negative word. I read a book just last night and The Power of the Subconscious Mind. You just sort of आप अपने आप को जो है वो सीट कर देते हैं when once you say कि oh I can't afford this. So your conscious mind knows you can't, but your subconscious mind sort of enlists that. So never call yourself with something to do with negative. कोई negativity अपने title के अंदर, अपने नाम के अंदर, अपने circumstances के अंदर कभी मत डालें. It's detrimental apparently. You know what's really interesting? I actually made a TikTok last week before coming here to London. वो अभी तक मैंने डाली नहीं है. It is about the word jobless because I met this lovely family in Islamabad. So she had been wanting to catch up. Lovely lady. She's in the bureaucracy. I met her along with her brother and her sister. So I asked the brother and he said कि मैंने बोला what do you do? तो वो बेचारा घबरा गया and then he said I'm jobless. So तो मैंने मैंने चुप करके सुना and we went on with the conversation. मगर थोड़ी देर बाद ना वो बात मुझे चुपती रही. So मैंने उसको बोला कि never say the word jobless. एक तो ये बड़ा negative word है and वो एक concept है ना onomatopic words. हाँ, exactly. So like all the certain words in English have the exact same feeling to it. जैसे chill सुनने में ही ठंडा लगता है, hot सुनने में ही गर्म लगता है, right? Crunchy सुनने में ही crunchy लगता है ना. So like similarly, so इस तरह के जो words होते हैं ना, jobless. So like अपने mind को train कर रहे हो कि I'm not good enough for a job, which is why I'm jobless. When you say I'm in between jobs, you're actually training your mind that I'm actively looking. I'm actively looking. मैं आगे पीछे जा रहा हूँ. I'm in between. एक स्टेशन से उतर के मैं दूसरे स्टेशन जा रहा हूँ, right? So never use the word jobless. Anyway, I have witnessed, so the lady says, I've witnessed fights in my home from early childhood. Me and my siblings have been through emotional neglect. Therefore, I have developed social anxiety disorder. My self-esteem, confidence has been shattered, although I have recovered and healed a lot from the past 5 years. Still at 26 years of age, I have not regained the confidence that one should have. In the past, I have been bullied, manipulated, and walked over many times. Simply because I appear to be innocent by face and I don't confront people or answer them back. I don't know how to stand up for myself. ये इन्होंने bold red में लिखा है. In short, I'm a traumatized child who has not healed completely. My problem. 6 months ago, I got a proposal from a middle class family. I never liked this proposal, but my mother kind of forced me and I did not want to disappoint her. I prayed to Allah for khair and agreed. This is what I don't agree with. कि like अम्मी के लिए कर लिया and then like अल्लाह से दुआ कर ली कि शायद कुछ हो जाए. अल्लाह ने आपको अकल दी है. नहीं, I'll come to that as well. I kind of don't blame. I'm not blaming her either. No. It's the circumstances, it's the social strata of this country. Absolutely. Which not just the country actually. यहाँ पर भी मैं देखती हूँ कि subcontinent का ये एक वो है, एक प्रेशर है शादी का. पेरेंट्स पे भी अगर ज़्यादा लड़कियाँ हों तो उनकी जल्दी शादी करानी है. And it puts a lot of pressure on the girls. So absolutely, there is no other option for them sometimes. हाँ, absolutely. I totally understand. कोई जानबूझ के थोड़ी
थोड़ी किसी आग में छलांग मारता. Obviously it's very easy for me to say because A, I have never been a girl, B, never had proposals, and C, was never forced into a marriage. So मैं तो ये चीज ही नहीं समझ सकता ना. She says the guy and I haven't talked since our parents arranged everything. His sister sent me his contact to talk to him, but I refused since I practice religion, and I said that if I needed to ask something, we would talk in the presence of someone. Okay, first of all, just because you practice religion doesn't mean you cannot talk to your potential future उसमें तो partner. में ना मेहरम का कोई चक्कर नहीं. Like अगर फोन पे आप बात कर रहे हैं. Exactly. I mean, like you have to know the person. आपको पता चलना चाहिए आपकी किससे शादी हो रही है. पहले ही you don't know the person or like you're already forced into it. Okay, anyway, my problem is his mother. I get very bad vibes from her. Every time she comes over, she only talks about her home and how they live there. My interests, desires don't matter. She has said mean things several times to me in front of everyone, but my mother ignores, and when I complain to my mother about her behavior, she says कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएंगे शादी के बाद. ये शादी के बाद ठीक होंगे. शादी ऐसा क्या अलादीन का चिराग है कि होते ही सब लोग सही हो जाएंगे. नहीं. Like बेटा खराब है शादी करा लो. मतलब क्या वो जब हॉल से निकलते हैं तो वो जैसे नहीं वो सैनिटाइजर वाले गेट लगे हुए हैं आजकल जिसके अंदर से गुजरो आप सैनिटाइज होते तो मतलब शादी के हॉल का गेट ऐसा होता है कि जो बिगड़ा हुआ बच्चा जो ओ द बेबी इज क्राइंग, वी हैव टू पॉज. हेलो ओके, वी बैक टू द रिकॉर्डिंग. हाँ जी, सॉरी अबाउट द पॉज, बेबी क्राइंग. सो ये तो होते हैं. अच्छा हाँ, सो लाइक ये वाली बात जो करना कि भाई बेटा ठीक हो जाएगा शादी के बाद, जैसे शादी हॉल में कोई ऐसी मैजिकल पावर होती हैं जिससे लोग गुजरते जाते हैं और सही होते जाते हैं. ये क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आती कि शादी के बाद ठीक हो. मदर इन लॉ है, बेटा 25-26 का होगा तो यानी माँ 50 की होगी. तो जो माँ 50 में सही नहीं हुई वो आपकी शादी में ऐसा कौन सा विर्त पड़ा जा रहा है जिससे वो फौरन सही हो जाएगी. सो दैट्स स्टूपिड मैन. शी समटाइम्स स्क्वीजेस माय हैंड एंड हग्स मी सो टाइट दैट इट हर्ट्स. ये क्या हरकत है. That's simply bullying, absolutely. Out of nowhere, she starts to say things like, साथ मिलजुल कर रहेंगे, हमारा आना पसंद है तुम्हें, अब बोलना सीख जाएं. This sort of stuff. She never converses anything other than her interest and cooking. I mean, probably that's her entire life. उनका और क्या होगा. असल में इंसान जो है ना वो वैलिडेशन का भूखा होता है. मतलब आप सोशल मीडिया के दौर में हम रहते हैं. सोशल मीडिया पे लोग क्या, टिकटॉक पे देख लो ना, कोई अपनी प्राडो से उतर रहा है, कोई अपनी V8 में बैठ रहा है. वैलिडेशन ही चाहिए ना, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. So like, so maybe that's what she desires. My mother-in-law is actually insecure of me and wants to have control over me through manipulation. Also, I have to live with her after marriage. She even said, job to nahi karwani, but my mother talked to her about it and stood up for me. Chalo, that's good. I do not feel comfortable around her. Also, I'm a highly sensitive person. I feel everything on another level, and such behaviors can make them very uncomfortable. I'm so sick and tired of her. I can't imagine my life living with her. I'm losing my physical and mental health, and therefore I am unable to concentrate on my career and my own life. I'm not at all at peace because I don't know how to handle such people. I don't even know how my fiance would turn out as a husband. Lady, this is why आपको जो नंबर दिया गया है उस पर राब्ता करें. पता चल जाता है इंसान का, फोन पे ही बहुत चीजें पता चल जाती हैं. I fear that he would be a typical man, mama's boy, not caring about my needs and problems. How can I tell him about his mother? He'll backlash against me. After all, he's brought up by this woman. He's not financially strong enough to keep me in a separate home. I have reacted to her mistreatment a few times, but she never stops. To everyone, she appears to be a loving person, but I feel her controlling nature that triggers my wounds. After speaking some good words, she slips in some mean words that leave me feeling drained. When she does something like this, instead of answering, I start to shiver because of anxiety. And you know, in the middle class families, बड़ों का एहतराम करना होता है, जवाब देना या अपनी पोजीशन क्लियर करना बदतमीजी हो जाती है. My low self-esteem and quiet, polite nature has allowed her to do this to me. She has sensed that I'm not good at answering back and not clever enough to do her any harm. I'm worried about my future. I want to pursue my career and become independent. I want to live my life on my terms and not anyone else's. I don't want my married life and happiness to ruin because of her or anyone else, because I have seen mother coping with all this shitty business. Her own mother. Her own mother. Oh, I've seen my mother coping with all this shitty business. I cannot refuse this proposal now. My question, how can I build my confidence to stand up to people like her? How can I stop her from manipulating me and walking over me? It may seem like childish and trivial matter to you, but I am in a dire need of sensible and practical advice. I do not even have a social circle to fall back on. Thank you for reading. First of all, I'm really sorry to hear about all this ordeal, and yeah, do you want to say something? Yeah, first of all, I'm like, इसको ये मत समझें कि it's a trivial matter. It's childish and trivial. It's your life. It cannot be childish and trivial. It's extremely important, and
because you have earlier mentioned that for some reason or the other you have gone through emotional trauma during your childhood. उसके वजह से obviously you are suffering from, you're a highly sensitive person who suffers from self-esteem. I'm assuming that you're extremely shy and you feel you can't stand up for yourself, which is wrong because you can stand up for yourself. मेरा तो इसमें यही आपको मशवरा होगा, निकाह नहीं हुआ है, the first time you can stand up for yourself is when you refuse this rishta. That's the first time. Or at least, okay fine, if you can't refuse this rishta, you buy 2 years, 1 साल तो कम से कम 1-1.5 साल, so that you have time to work on yourself. And in this time also I would suggest you to speak to your husband to be या fiance. उसके भी पता चल जाएंगे कि whether he's a mummy's boy, whether he's independent, whether he supports you through this, because like you said that वो सबको sweet लग रही है, सब कुछ हो रहा है, and you are a highly sensitive person, so maybe जो वो कर रही हैं वो आपको जो है वो ज़्यादा लग रहा है, which is why your mother is saying कोई बात नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएंगी. खुद ही कोई भी ठीक नहीं होता, वो जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी. But it's you who's going to have to develop these coping strategies where you have to protect yourself. Now whether it's going to be with your husband's or fiance's help or not, वो आपको अपने आप के लिए देखना है. तो my first मशवरा to you would be कि निकाह नहीं हुआ है and there is I know of someone जिसने जो था वो अपनी अम्मी को ये कहा था कि जब उसके ससुराल से कपड़े आए तो वो इतने ख़राब थे और ससुराल वालों ने मशवरा ही नहीं लिया था उस लड़की से. Okay. So her elder sister had said कि ये इस वक्त इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे, आगे जाके इसको कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया करेंगे, आप अभी जो है वो so that was a red flag. That is a red flag. Recognize these red flags. देखें, and overtly sensitive जहाँ पे होना सही नहीं है वहाँ पे जो है इन बातों को, इन red flags को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता. From what you're saying about the squeezing bit, it is bullying, and वो मुझे लग रही हैं, you've not said it but I am assuming कि your husband is either the youngest in the family or he is the only child. अच्छा, नंबर भी आपको जो ला कर दिया है वो मुझे ऐसा महसूस हुआ ये आपके ईमेल से कि नंबर आपको it's been sent from him. It's not his sister who's randomly come and said to you कि can you please call my brother up and speak. No, it's him who has said, maybe he has the same intrigue. So I don't you think maybe he knows his mother way too well and he wants to seek your opinion. और अगर आप उसको अपने concern शेयर करें, maybe he agrees with you and maybe like कि हाँ वो मेरे साथ भी ऐसी हैं and like let me work on something to like you know live separately या फिर इसका कोई solution निकाला जाए. So देखिए, communication is the key. जब तक आप communicate नहीं करेंगी आप तो फिर तो जहन तो फिर हर जगह जाएगा ना आपको. तो फिर वैसे you're a highly sensitive person तो फिर आपको anxiety भी है तो फिर आपका दिमाग overthinking भी होगी और फिर racy mind होगा और वो फिर worst situation का ही सोचा करेगा. Maybe if you talk to your fiance, ठीक है, you can't back out, so like you know the next step would be to at least get him in the loop. अगर वो भी बिल्कुल ही रेड फ्लैग है तो फिर तो आपके पास पूरा जवाब मौजूद है कि भाई माँ भी ऐसी बेटा भी ऐसा, अम्मी अब बताएं मैं क्या करूं. मगर अगर आप ख्यालों में और ख्वाबों में और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करेंगी तो बीबी अल्लाह मियाँ जो है वो ज़मीन पे आके नहीं आपको बोलेंगे कि बेटा ये नहीं, ये सही है, ये गलत है या वो गलत है. अल्लाह मियाँ सिर्फ साइंस ही दे सकता है. इंसान को अल्लाह ने अकल दी है कि उन साइंस को समझे और उसके हिसाब से एक्ट करे. सो दीज आर द साइंस फॉर यू. अब आप जितनी मुसल्ले पे बैठ जाएं तहज्जुद पढ़, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब दुआओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ना करे, मैं खुद एक साहिब ईमान आदमी हूँ. मैं बात ये कर रहा हूँ खाली दुआ नहीं, दवा भी चाहिए होती है ना. हम अस्पताल जाते हैं तो फिर दवाएं भी लाते हैं ना साथ में, दुआएं ले आते हैं, मौलवी ले आते हैं घर में, फार्मेसी जाते हैं, मस्जिद नहीं जाते. समझ रहे हैं मेरी बात? चीजें दोनों जरूरी हैं. तो I would suggest you communicate to your husband to be and see where it goes. वरना तो ये आंटी बिल्कुल ही टिपिकल हैं और कुकिंग और मेरा घर ऐसा है, मैंने ये ज़ैनब मार्केट से ये खरीदा, मैं बोरी बाजार से ये वाला पतीला लाई. आया कैसे इस घर के अंदर मेरी मर्जी के बगैर, ऐसी भी. हाँ एग्जैक्टली. ये नहीं होना चाहिए. अब मुझे जहाँ अफसोस होता है ना वो ये होता है कि देख, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नोटिस किया होगा कि इसकी ईमेल कितनी अच्छी स्ट्रक्चर्ड हुई थी. इट्स अ रेयरिटी फॉर मी टू गेट सच nicely written emails, right? अभी तो मैं आपको और दिखाऊंगा ना कितनी कीड़े मकोड़े आते हैं. मतलब मैं किसी की प्रॉब्लम को वो नहीं कर रहा, ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, मगर जिस तरह चीज़ें लिखी हुई होती हैं. सो एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, करियर ओरिएंटेड, जो कि
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती थी, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर सकती थी, अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल अच्छा कर सकती थी, मुल्क की इकोनॉमी का हिस्सा बन सकती थी, उसको जबरदस्ती एक शादी में डाल के वेरी अपसेटिंग। वी किल पीपल लाइक दिस एवरी डे। रोज का है ये भरी पड़ी है, ये 4,500 ईमेल्स हो गई हैं अभी तक, ठीक है ना, जबरदस्ती डाल के। एक पढ़ी लिखी लड़की वाकई बड़ी स्ट्रक्चर्ड सा उसने ईमेल करके, एंड हाउ डेस्परेट फॉर हेल्प इज शी एट दिस मोमेंट इन टाइम। Yeah, like she practically emailed absolute strangers. Like we don't know her, she doesn't know us. She only knows me. That too through my work, not as who I am, right? नहीं, पर्सनली तो आई वुड से कि स्पीक टू दिस गाय फर्स्ट, और दूसरी चीज ये है कि शादी तो अभी आई वुड से टू यू कि दिस इज गोइंग टू बी द कोविड का ब्रेक ले लें, बोले जी मुझे तो माइयों बैठना है, मजे वजे वाले मतलब इवेंट्स करने, तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो ये अगले साल देखेंगे। बिकॉज यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन पैसा कमाना सीखे भाई, खुदा ना खास्ता कल को अल्लाह ना करे वो कुछ भी लड़ाई झगड़े करके घर भेज देते हैं, फिर आप क्या करेंगे, आपका करियर ब्रेक आ जाए। एक और चीज, ये बात कहना कि मेरी अम्मी स्टूड फॉर मी कि जॉब होगी जॉब नहीं होगी, व्हाट्स देयर टू से कि इतनी ये मैनिपुलेटिव लग रही हैं ये मोहतरमा, व्हाट्स देयर टू से कि टुमारो शी डजंट गो बैक ऑन हर वर्ड एंड से नहीं कर रहे, एंड व्हाट्स योर मॉम गोइंग टू डू, हां क्या करेंगी, फिर कहेंगी कि बेटा अल्लाह की मर्जी है। नहीं, ऐसे ना करें, एंड यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एज मच एज वो, और उन्होंने बोला होगा ठीक है हाँ अभी हम मान जाते हैं, इसको घर आने तो दो जरा। पता है क्या, ये फिर ये निकलती कैसे इतना होता है बच्चियों की शादी का कि वो कहते हैं, वो हर बात मान लेते हैं नोइंग फुल वेल, उन्होंने दुनिया देखी होती है, लोगों को देखा हुआ होता है, मगर फिर भी वो कहते हैं नहीं ये बंदा हमसे झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता आपसे झूठ? हाँ पता नहीं क्यों, ये बिला वजह का ट्रस्ट होता है। ये एक अपने आप को खुश करने वाली बात है। प्लीज टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, एंड लाइक इफ यू कांट रिफ्यूज इट, डिले इट, एंड भाई अब इतना भी डिले नहीं करना ना। अब देखें लड़कियों की एज भी तो डेलिकेट मामला है हमारे यहाँ। देखो 26 की तो वो ऑलरेडी है, अब वो 27-28 के अगर ब्रैकेट में जाती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो ना, 27-28 में जाती है तो वो तो भाई हो गई पुराना चावल। ये औरतें यूज करती हैं, वो जो रिश्ते वाली खवातीन, ये मैं नहीं कह रहा, वो इस तरह कहती हैं। इनफैक्ट लाइक क्या चाइना में भी कहते हैं लेफ्ट ओवर नूडल्स कहते हैं 28 के बाद वाली लड़कियों को। थर्ड एशियन कल्चर तो मिसोजिनिस्टिक ना, तो नहीं, मगर देखो मतलब अल्लाह पे इतना भरोसा है, हाँ एग्जैक्टली, तो अल्लाह पे ये भी भरोसा करें कि जो हर मर्द के लिए एक औरत बनी है और हर औरत के लिए एक मर्द बना है, तो इस पे भरोसा कर लें जब आपने अल्लाह पे भरोसा किया है। हाँ ओके, लाइक बट फॉर गॉड सेक्स नोइंगली, और इस उसके अंदर क्या, दिस स्टेट ऑफ एंजाइटी इज वेरी हाई, दिस इज वेरी हाई स्टेट ऑफ एंजाइटी बाय सम टाइम इफ यू कांट रिफ्यूज दिस। मुझे तो यही दुख होता है यार, काम वाले लोग हैं उनको फट्टे चढ़ा के ना ये लोग, कसम से। खैर आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो, एंड डू stand up for yourself and take charge of your life. Okay ji, question number 2. Okay, the next one says, Assalamu alaikum, I'm from Islamabad and belong to an elite class family. Alhamdulillah, I have been blessed with everything including a loving and supporting family, but since birth I have struggled with mental illness. The thing is that I don't have one but many mental illnesses. Because of this I have always been different from other kids, and I've always kept this as a secret. I have the liberty and funds to do anything I wish without any questions from my parents, and the main reason for that is I matured way too sooner than I should have. Instead of playing games and being a kid, I became involved with family business and family matters before I even hit puberty. You can say I was financial advisor for my father, relatives and family friends. Later I became a family counselor for them as well, helping them sort their family matters such as how to raise their kids and solve marital problems. Wow bhai, bada cheeta hai. Since everyone thought I was a shining star, nobody ever thought my life was falling apart due to so many mental issues. I started smoking when I was 8 and started smoking hash at the age of 12. I went to school, so scoring anything was really easy for me because I would pay thrice the price for it. My family is religious, so I didn't have alcohol at home, so I used to buy from my seniors. By the age of 15, I would be taking a cocktail of drugs with alcohol. Nobody suspected anything because I was perfect child who was an example of brilliance to everyone. Everyone envied what was expected from me. I hated only one person, that was me. A common Pakistani would say, "Iske bhare pet ke masle hain." During this lone battle, I fell in love. This love was unconditional. She helped me get better. She was the only person that knew my personal life and still chose to stay in the chaos I had made for myself. Keep in mind, I was 15 at that time. She was a gori that my family accepted as their future daughter-in-law and called her Beti, and her family called me Beta. She made me feel alive, feel
like I'm normal just like everyone else, but my love story came to an end when I was given ultimatum that either I stop doing drugs or leave her. The naive me left her after 2 years of relationship because of my addiction. She helped me pass my O level with straight A's, and my dad bought me a Porsche because I was given 100% scholarship in my A levels. The thing I didn't know that it was her that kept me afloat, and I was doing everything to drown myself. She left me and went back to England, and I became heavily dependent on alcohol, cocaine, and Xanax. When I realized I needed her more than anything, I took 12 trips to England just to sit outside her house to just win her heart and win her back, but she had made her mind to stay away from a toxic person like me. The thing was that I wasn't lonely. I was known by many people who had no idea I existed, but no one knew who the real me was. My pocket money is in 7 figures, mashallah. 10 lakh to hogi kam se kam, 7 figures keh rahe hain. More than every very accomplished people's salaries. हाँ बिल्कुल. My parties would be on everyone's Snapchat and Instagram. Bro, हमें भी बुलाएं. Girls begged me to have a one night stand with me just so they could be a part of the spotlight I was in. I always rejected because I still love her to this day. I failed my A level twice. I stopped meeting people. Everyone had questions on what had happened to him all of a sudden because of my illness. My illness took over, and I left them control me and took an ungodly amount of drugs just to cope with the pain. One day I felt like my time was over. I lit a gas cylinder and threw it in my Porsche as the fire was blazing higher than I had imagined. बंदे ने गाड़ी चला दी. Allah blessed me and stopped me from sitting in the burning car at the very last moment. I said I don't want to live with myself anymore, and I thought, who is the I and who is myself I am referring to? And I prayed that Fajr that day, and I finally got on the road of recovery. Junaid bhai, I am now a God-fearing person who has no motto in life except to worship Allah. I don't want any worldly thing, and I told my father I don't want any inheritance. I just want a masjid where I am a muazzin. I received a long lecture which in short is कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए, और तुम सब मेहनत पे मिट्टी फेंक रहे हो. I have 2 brothers, an elder and a younger one, but my father wants me to take over the main business because he sees my potential of leadership and innovation. मेरी माँ वजीफे पढ़ती है और बाप रात को नहीं सो पाता. I need your advice on how to peacefully start my new journey of life without causing any conflict with my parents, because I genuinely love them as they have done so much for me to progress in life. I don't want to share my painful experience on who I choose this life, as I have lied to, why the car got burnt, why I went to England so many times, why my relationship ended, why I failed my A levels, and so many other things. I didn't add to this as I want to take those secrets to my grave. अच्छा कुछ है और वो नहीं बताया. P.S. I want you to tell your audience that money isn't everything in life. It's your perspective of life that really matters. Absolutely. कल ही मैं वो इंस्टा लाइव पे यही बात कर रहा था कि money is just a tool. Money is not happiness. It's just a tool that makes your life easier. मगर हम लोग ना पैसे को ही एपिसेंटर बना के समझते हैं कि लाइफ इसी के गिर्द घूमती है. So what do you have to say about this? This is a very sad email. It's a very sad email. Firstly, I just feel कि okay, you weren't old enough, but you're a precocious child. So आप वक्त से पहले जो है वो बड़े हो गए, and to be honest आपकी फैमिली ने जो है वो थोड़ा सा इसमें ना they were very comforted by the fact कि आप marital problems भी solve करे थे, तो आप जो थे वो they didn't let you enjoy your childhood, I would say, and this was nothing. This was like but उन्होंने रोका तो नहीं था. नहीं, मगर ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया. Okay. ये बच्चा 8 साल की उम्र से 15 साल का कब हो गया उसको यही नहीं पता. So from 8 he missed 7 valuable years of his life mentally, and he. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि you said you have mental illnesses. Have you been to a therapist, a doctor, a psychologist who has diagnosed you with these? Because I don't think you have mental illness. That's my very unprofessional or layman's उसका है. And if you tell your parents this, they're probably going to turn around and say the same thing to you. कि नहीं ये सब तुम्हारी दिमाग की बातें हैं, और ये ऐसा कहें कि Why are you saying this? Why are you? Because I would recommend कि जब इतना पैसा है, I would recommend कि go to a psychologist and get yourself checked first and see if you do have any problems.
Okay. You can't self diagnose yourself and then हाँ. you know take meds for it and say कि नहीं जी मैं तो ये हूँ मैं तो ये हूँ. तो अगर आप नहीं भी हो तो you're saying कि आप हो, और अगर आप हो तो क्या है प्रॉब्लम्स आपकी एंजाइटी है, आपके बाइपोलर डिसऑर्डर है, आपको प्रॉब्लम क्या है, ताकि आप उसको उसके लिए मेंटली आप और आपके जो घर वाले हैं जो आपसे प्यार करते हैं वो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि भाई हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है और वो इस यू नो दिस इज व्हाट ही इज डीलिंग हाँ, विद. अगर वो 7 फिगर्स की पॉकेट मनी दे सकते हैं तो वो एक अच्छा थेरेपिस्ट भी हायर कर सकते हैं. दे कैन ऑलवेज सेंड यू अब्रॉड फॉर ड्रग रिहैब. बहुत सारी चीज़ें इंटरवेंशन rehab हो तो उन्होंने सकती ले हैं. लिया. He's done self rehab and that's so commendable. That Okay. requires a lot of नहीं, willpower. बट लाइक ही बाउंस बैक ना. नहीं मतलब but then he had a turning moment जिसमें वो he बट did his उसमें own, भी फिर he left नहीं, drugs. बट उसमें भी तो लाइक देयर वाज अ पर्सन इन्वॉल्व ना. तो वो वैलिडेशन जो है ना, वो द नीड फॉर हीलिंग इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. इट शुड कम फ्रॉम विद इन. मेरा ये मानना है कि लाइक आई वांट टू हील माई सेल्फ, नॉट बिकॉज अ गोरी लव्स मी तो मैं उसके लिए ठीक हो जाऊँ. ओके, He was सो लाइक heartbroken. दिस इज माई टेक फ्रॉम दिस. ठीक है, यू हैड अ वेरी रोलर कोस्टर childhood, and it's really sad you picked up on drugs at such an early age, and इस तरह की. So ये जो आपका न्यू फाउंड लव है विद गॉड, इट्स कमेंडेबल, एंड इफ इट्स हीलिंग यू, आई एम हैप्पी फॉर यू. मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे ही मेरा जवाब ख़त्म हो, आप यूट्यूब पे जाइएगा और यूट्यूब पे लिखिएगा दूसरा कुत्ता और आगे लिखिएगा स्टोरी. तो एक 8-9 मिनट का एक ऑडियो क्लिप है, वो ज़रूर सुनिएगा. ठीक है, क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, जहां आप एक फैक्ट्री को 10 फैक्ट्रीज बना के 1000 लोगों से 10,000 लोग एम्प्लॉय करके 1 लाख लोगों का पेट पाल सकते हो. देखो, जंगल में जाना बड़ा आसान है, मुसल्ला लेके पहुंच गए और वहीं नमाजें पढ़ी सारी ज़िंदगी. मगर उसमें जो है ना, आप अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हो. दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि मैंने उस स्टोरी से सीखा था. उस स्टोरी में भी इसी तरह की एक कहानी थी कि एक फैक्ट्री का ओनर था. उसने देखा मैं स्पॉइल नहीं कर रहा, आप वहीं पे जाके सुनिएगा, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये था कि जब अल्लाह ने आपको इतनी पावर दी है कि आप इतने सारे लोगों का ख्याल कर सकते हो. दूसरी चीज़, अगर आप का न्यू फाउंड लव है अल्लाह ताला के साथ, रिलीजन के साथ आपका एक कनेक्शन बना है, तो आपको पता है कि हमारा रिलीजन जो है, हुकूकुल इबाद में कोई माफ़ी नहीं है. हुकूक अल्लाह की तो माफ़ी है, मतलब आप नमाजें पढ़ रहे हो तो उसकी तो बख्शिश है, मगर माँ बाप का दिल दुखा के ऐसी नमाजों का कोई फ़ायदा नहीं है. ये तो आप किसी भी मौलवी साहब से पूछ लें, गली मोहल्ले के, वो भी आपको बता देंगे कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ कि मेरा बाप पूरी रात सो नहीं सकता. और आप मौज़िन भी बन जाएं, अजाने भी दे दें, आप खाना काबा में के भी मौज़िन बन जाएं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अगर आपके वालदैन, और वालदैन का जो रुतबा है हमारे दीन में, हर मज़हब में ही है, लेकिन हमारा अगर हम अपने दीन की बात करें, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, उस जन्नत को आप इस तरह ठुकरा रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, बेचारी वजीफे पढ़ रही है. बाप जिसके बारे में कहा गया है, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. वी हैड अ वेरी टफ रिलेशनशिप विद आवर फादर, ऑल ऑफ आवर सिबलिंग्स कम्युनिकेट नहीं करते थे वो. तो वो ऑब्वियसली रिजेंटमेंट्स भी थी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़ाहिर है घर की बात है. मैंने एक हदीस पढ़ी थी अखबार जहाँ में, उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारा बाप जो है जुआरी भी हो या नशा भी करता हो, नशे से मुराद मतलब शराबी भी हो, कुछ भी हो, तुमने फिर भी उफ नहीं करनी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारा बाप है. और मैंने वो चीज़ पकड़ ली अपने साथ. तो मैंने वो जो थोड़ी बहुत भी रिजेंटमेंट्स थी, मैंने अपने दिल से निकाल ली और हमेशा दुआई की. खैर, बाप का ये रुतबा है. इधर तो आपके बाप वाले साहब ने माशाल्लाह आपको इतना कुछ सेटअप करके दिया, सब कुछ करके दिया, सो दैट यू कैन ग्रो इट फर्दर. तो अगर आप अल्लाह की रजा चाहते हो तो पहले तो अपने पेरेंट्स का दिल ना दुखाएं इस तरह. ठीक है, देखें, इस्लाम जो है मीज़ान का सबक देता है ना, सबसे ज़्यादा तवाजुन, बैलेंस, राइट. एक्सट्रीमिज्म नहीं है कि जी इतना ज़्यादा. देखो, किसी भी चीज़ की ज़्यादती वो फिर आपको बड़ा नुकसानदेह होती है. आपने बैलेंस रखना है, आपने दीन को भी साथ रखना है, दुनिया को भी साथ रखना है. मैं वही कह रहा हूँ, बहुत आसान है. दुनिया तर्क करके आप जी बंदा किसी मस्जिद के बाहर बैठ जाए, किसी मज़ार के बाहर बैठ जाए, आपको रोज़ बिरयानी खिलाने वाले भी मिलेंगे, आपको कंबल लिहाफ देने वाले भी मिल जाएंगे, आपको चाय पिलाने वाले भी मिल जाएंगे, आपका गुजारा हो जाएगा. मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, मगर उसमें फिर आप जो काबिल थे ना लोगों को सर्व करने का, आप वो नहीं कर रहे होगे, उल्टा आप डिपेंडेंट हो रहे होगे. और आप ये सोचें कि यू नो बाय आपके जो 2 भाई हैं, एक आपसे बड़ा भी है और एक आपसे छोटा है. चले छोटे वाले का तो की तो खैर है, एक बड़ा वाला है,
उसके 2 भाई हैं, हाँ, एन हाँ। ओल्डर एंड अ यंगर वन, हाँ। और बाप फिर भी जो है वो आपको चाह रहे हैं कि आप बिजनेस जो है ना वो मेन बिजनेस पेरेंट्स Yeah, they आपसे look up यू to नो you, कि man. you're their favorite son, they just because they can't say it. अरे डोंट से फेवरेट सन, वो फिर दूसरे भाइयों में रिजेंटमेंट ना आ जाए. यू हैव अ यंगर ब्रदर हु हैज टू लुक अप टू समवन, ठीक है ना. ऑब्वियसली यू आर द क्लोजर, यू आर मोर क्लोजर टू हिम देन द एल्डर ब्रदर, बिकॉज वो एज फैक्टर की वजह से जो सिबलिंग्स होते हैं वो अपने से ऊपर वाले अपने से नीचे वाले से ज़्यादा क्लोज होते हैं. तो सो आप उसके ये लिए देख लीजिए कि उसके लिए भी क्या हाँ। एग्जाम्पल आप सेट करो कि माँ बाप का बेशक दुल दुखा दो और छत पे जाके अजाने देते रहो. You get what I'm saying? I may be coming across as someone who's very anti-religion. ऐसी बात नहीं है. मैंने इससे पहले वाले सवाल में भी कहा कि मैं भी साहिब ईमान आदमी हूँ और मैं तवाजुन की बात कर रहा हूँ, बैलेंस की बात कर रहा हूँ. सारी चीजें तर्क नहीं करनी. तो वालिद साहब की एक फैक्ट्री अगर है तो आपका काम है उसको 10 करना. आगे इस मुल्क में नौकरी लोगों के पास नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग गरीब हैं. कोरोना ने और बेड़ा गर्क कर दिया. तो अगर आपका पोटेंशियल इतना है कि आपने लोगों की जिंदगियां सही की हैं 12-14 साल की उम्र में, राइट, लोगों के घर बचाएं, तो मतलब यू हैव अ मच बिगर रोल इन लाइफ. देखें, कमरे में नमाज पढ़ना बड़ा आसान है, मगर गोइंग पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर इन फायर एंड फेसिंग ऑल द चैलेंजेस और फिर एक इकोनॉमी क्रिएट करना और लोगों के लिए जरिया माश बनना, ये आसान काम नहीं है. सो लाइक यू आर चूजिंग द इजियर पाथ इन लाइफ. जिंदगी एक बार मिलती है और जिंदगी चैलेंजेस से होती है. फिर पता है क्या होगा, अभी तो आपको मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, बट सम पॉइंट इन योर लाइफ, इन योर लेट 30s, मिड लाइफ क्राइसिस के टाइम पे फिर आपको ख्याल आएगा कि यार मेरे पास इतना कुछ पोटेंशियल था, आई कुड हैव डन दिस, आई कुड हैव डन दैट. ये जो कुड हैव वुड हैव वाली फीलिंग है ना, ये इंसान को जीते जी मार देती है. विच इज वाई मेरा जो फोकस है ना वो होता है यंगस्टर्स पे या टीनेजर्स पे है कि भाई वो अपनी चीजें सही कर लें, वरना फिर मेरी एज पे आके जब उनको होगा ना कुड हैव वुड हैव. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल माय एज, वो बेचारे देर डूइंग वंडरफुल जॉब्स एंड देव क्रिएटेड लाइक देर रेजिंग देयर फैमिलीज एंड एवरीथिंग, मगर वो चूंकि अपना पोटेंशियल पूरा 100% नहीं कर सके एंड दे चोज अ कंफर्टिंग लाइफ. वो आज ही मैंने कोट शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ. सो राइट नाउ यू चूजिंग एन इजी लाइफ. यार 5 बार अजान ही तो देनी है, राइट. अगर आपने मुअज्जिन बनना है तो आपने सुबह 4 बजे जाके अजान दे दी. अब 4 बजे से 1 बजे तक कोई काम ही नहीं है आपके पास, फिर 1 बजे उठ के अजान दे दी. अब 1 से 5 तक कोई काम ही नहीं है, असर की दे दी, फिर 5 से 7 नहीं है और फिर 7 से 9 नहीं है. समझ रहे हो मेरी बात? तो इस आप मुअज्जिन भी बने, अजाने भी दें, बिल्कुल दें, नमाजें भी पढ़ें, मगर ये जो बीच में जो आवर्स हैं उसमें फैक्ट्री जाए, फैक्ट्री के अंदर मस्जिद बना दें, लोगों को बोले जी आके जोहर की नमाज पढ़ें, सफ़े वफ़े बिछाएं, काम बंद करें, ठीक है ना, लॉन्ग लंच ले लें आप, वहीं पे आप अजान भी दें. तो कितनी अच्छी एग्जाम्पल सेट करेंगे. यार हमारा सेठ जो है ना सिर्फ हमें हमारी रोजी रोटी का ख्याल रखता है, हमें नमाज भी पढ़ाता है. व्हाई डोंट यू थिंक अलोंग दीज लाइंस? अकेले क्यों जा रहे हो भाई, जब तुम्हारे अंदर ताकत है हजारों लोगों को अपने पीछे लेके जाने की, और इस चीज़ का सवाल होगा तुमसे. अब देखो ना, मेरे सामने माइक रखा है, मैं भी इसको इबादत के तौर पे लेता हूँ. अगर लाखों लोग सुनते हैं, मेरी भी कोशिश होती है कि मैं उतनी जिम्मेदार बात करूं कि किसी की जिंदगी बेहतर हो, क्योंकि फिर उसी का सवाब मुझे मिलेगा. वैसे तो गुनाहों से भरी हुई जिंदगी है भाई, शायद इसी में बख्शिश हो जाए. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? जो हुआ सो हुआ, कांट चेंज दैट. देयर इज नो सच थिंग एज बैड एक्सपीरियंसेस, देयर इज ओनली लर्निंग प्रोवाइडेड यू डोंट रिपीट देम. ठीक है, ड्रग्स वाला एक फेज था, गाड़ी चलाने वाला, मेंटल इलनेस, आई टोटली एग्री विद दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल जाके यू शुड सी अ साइकोलॉजिस्ट, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन, और फिर जिस तरह मैंने जो आपको बताया ना, उस तरह अपने आप को रख के सोचो. Also, with regards to the person who has, like moved out of your life, or sort of, been forced out of your life, you owe her an apology. आप ये चीज़ें जो है ना, वो मुझे ऐसा भी महसूस होता है, और मे बी someone more professional can say this to you, कि this is a bounce back. क्या हम जो है वो कहीं ना कहीं हम solace ढूंढते हैं, and maybe you found that solace in religion. तो आप उनको जो है वो किसी तरह से और कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट डू कांटेक्ट हर एंड टेल हर दैट यू आर अ रिफॉर्म पर्सन and you think of her all the time, and then thank you for whatever you've done, everything that you've done, and like thank her for everything. Let her know this, ताकि you're not carrying that weight. एक chapter ख़त्म कीजिए and then just move on. And bad relationships happen, and yes, it's heartbreaking, but you have to move on and life goes on. इसमें सुसाइड करने की कोशिश और ये वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स, आई नो, एज हार्ट ब्रेकिंग एज इट इज़, वीव ऑल सर्वाइव्ड इट. सो आई सजेस्ट you try and explain this to yourself, and writing to her or communicating this to her, that she was a special person and she would always hold a special place in your heart, would
probably take some guilt off your head as well. हाँ, appleyard.co.uk पे जाके आप उनको एक फ्लावर्स भेज सकते हैं. 1 दर्जन वाले हैं ट्यूलिप. कौन से वाले? मगर देखिए वहां पर आपका कार्ड रिजेक्ट होता रहेगा तो वो कार्ड अबे हाँ शायद वो भाई, फ्लावर्स कभी ना मिले आपको. ये मैं गलतियां क्या यार, पाकिस्तान के बैंक ही ऐसे, मैं क्या करूं, नहीं चलता कार्ड में. मैं बेगम को भेजता रहता, कोशिश करता रहता हूँ फूल भेजने की, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कि देखो फूल भेज रहा था, नहीं पहुंचे. थैंक यू पाकिस्तान के बैंक वालों, मेरा काम भी हो जाता है और पैसे भी बच जाते हैं. खैर, गुड ऑन यू मेट, अपना ख्याल रखें. क्वेश्चन नंबर 3. Assalamu alaikum Junaid bhai, I listen to your videos all the time. At the time of dinner and the days there is no latest podcast, I really miss it. Thank you for sharing interesting questions and your opinion regarding these. Thank you. Background: I live in London, hey neighbor, and I'm doing a job in design engineering at a well-known company. Nice. My bachelor's in schooling is all from Pakistan. My family was very proud of me when I got this job abroad. My family is mashallah educated. 90% of the family members are doctors and remaining are PhDs or engineers. And that is why in my family, education is the priority from day one for boys and girls equally. Wonderful. Proud of your family. My question: is too much education harmful for girls? ज़्यादा पढ़ लोगी तो रिश्ते नहीं आएंगे, है ना भाई, ये कहते हैं ना. मेरी बहन को भी, like my mom said that to my elder sister when she was applying for masters. She said the same thing. मेरे सामने कहा था ये बात. I was too young to intervene. I was too young to know कि masters भी कराना, मतलब like I was all in for education. I paid for it. मगर वो मेरे obviously मैं इतना woke नहीं था. मैं 15-16 साल पुरानी बात, तो ज़्यादा 18 साल पुरानी बात. तो my mom said the same thing कि लड़कियों के रिश्ते नहीं आते मास्टर्स वालियों के, क्योंकि डंगर सारे बैचलर करके बीकॉम करके बैठे ना, ये तो आगे जाते नहीं है. इंटिमिडेट हो जाते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की आ जाए तो. खैर, I was a bright student all my life and now I'm in my mid-20s, and that's why I get proposals mostly from boys working abroad but are basically from Pakistan just like me. As soon as I start talking to them in order to know them, permission is given by both families, यानी family के consent से जब बात करते हैं. Initially they will talk about girls' rights and education and will get very impressed by my so educated family and me being an independent girl doing a job in London. But after few weeks of talking, they will show their concern over the following things. Number 1, तुम 9 to 5 job करोगी तो बच्चे कौन देखेगा? Number 2, you are a girl and you should know home responsibilities. Number 3, working women only care about their jobs and will leave the kids at home no matter what. Disgusting. Number 4, mothers who don't stay at home make bad kids who get into drugs. आपके बच्चे ड्रग्स लेते हैं? आपने काम किए सारी जिंदगी? पूरी जिंदगी 16 साल की उम्र से. Okay. I always give them example of my mother who's a full-time doctor and raised all her kids and made them doctors and engineers. I know my past class fellows in Pakistan who started doing really bad stuff, all having moms as homemakers. Exactly, इस बात की गारंटी, मतलब क्या जो औरतें काम करती हैं उन्हीं के बच्चे नशेई हैं यार. मैं तो ऐसे तहज्जुद गुजार लोगों के बच्चों को जानता हूँ जो क्या कुछ नहीं करते. और मैं like, इसकी कोई गारंटी नहीं है. और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि were known for being drunk at parties और उनके बच्चे सिगरेट को और अल्कोहल को छूते नहीं हैं. हाँ, ऐसा भी है. ऐसे भी होता है. हाँ. According to this logic, shouldn't boys raised by homemakers be more sharif or parsa? And the most heartbreaking part is that all these comments came from educated good family boys. अबे यही तो मसला है, educated नहीं है, वो डिग्री होल्डर है. डिग्री होल्डर्स हैं. It's not educated. अबे घंटा एजुकेशन, लोग 10 साल स्कूल में लाइन में लगते हैं और जैसे ही स्कूल खत्म होता है अगले दिन लाइन तोड़ना शुरू कर देते हैं. वो डर से कर रहे होते हैं, वो एजुकेट नहीं हो रहे होते, वो डर से काम कर रहे होते हैं. जिस दिन पावर डायनामिक्स चेंज होती है, टीचर वो टीचर नहीं रहता जो आपको मार सकता है, क्योंकि आप स्कूल से वो टीचर को मारते हैं. हाँ, एब्सोल्युटली. पाकिस्तान में इतना कॉमन है पंखे टेढ़े करना, मैट्रिक का आखिरी दिनों पंखे टेढ़े, इतना कॉमन है. तो वही एजुकेशन थोड़ी है भाई. My opinion, a girl can take a short career break or can get help from outside once there are kids, but for this the husband has to be supportive. Also, this will be sorted when the kids will come to this world. Sorry, but मर्द होके औरत को बता रहे हैं कि माँ को कैसे फील करना चाहिए. तालियां. It's like I tell you one day how to make podcast. Most importantly, whether a woman is working or not, at the end of the day, she can raise the kids better than any man in this world. I even told one of the proposals boys that this is so discouraging that from now onwards, fathers will stop giving their daughters high education, fearing that men would reject on the basis of a 9 to 5 job or having a good career. All my life, I have seen girls being rejected on dark complexion or short height, which is toxic, and that's another topic, but never on having an established career. This is 2021, and if
educated guys still have thinking like this, then I'm speechless. Please throw some light on this topic. Am I wrong in all this? Sorry for my long and sad email. Thank you so much. हाँ जी. ये तो मुझे सबसे पहली बात नहीं थी, रिश्ता तय हुआ नहीं है और बच्चों की तैयारियां पहले ये नहीं, लेकिन don't you think it's important? Yeah, it's important, but then why give hope to an educated girl's parent? फिर आप किसी जाहिल से शादी कर लीजिए, फिर आप क्यों पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर रहे हैं? नहीं, वो अपने देखें, हम लोग देखो, लड़की अगर आपने हमारे यहाँ पता है ज्यादा वो क्या होती है, नहीं, she's living in शादी, no, listen to me. हाँ, शादी करना या गर्लफ्रेंड पालना अपने लिए तो होता ही होता है, मगर ज़्यादा उसका एंगल होता है कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि देख बच्ची चेक कर मेरी कितनी टाइट है, या फिर ओ आई स्कोर्ड अ डॉक्टर वाइफ, तुम लोगों की तो जाहिल इंटर पास बीवियाँ, ये देखो मेरे पास डॉक्टर है. उनको सिर्फ इसलिए चाहिए होती है, माएँ भी इसलिए ढूंढ रही होती हैं. डॉक्टर बहू पराठे पका रही होती है सुबह. नथिंग रॉन्ग विद पराठास, आई लव देम. design engineering and that's an extremely good field. Yeah man, I'm super proud. I ओ भाई, कोई जॉनथन पकड़ो. मैं तो यही बोलता हूँ, मैं तो अपनी बीवी को भी यही बोलता था. ओ भाई, कोई जॉन पकड़ ले, कोई जॉनथन, कोई एंड्रयू, क्या तो ये मुदस्सिर और सिद्दीक, इनमें क्यों घुसे हुए इनमें, कल्ली वल्ली यार. पूरी दुनिया पे उन मुसलमान कर लो गोरों को, इतना अच्छा मुसलमान होंगे, गोरे मुसलमान करके शादी कर लो. मैं तो ये कहूंगा, उम्मती औरतों निकलो. और क्या, अबे खल्ली वल्ली पाकिस्तान के लौंडे थी एक नंबर के. नहीं, मगर ये पाकिस्तान के नहीं है, these are educated, अरे हैं तो, अरे वही ओ भाई, ब्रिटिश पाकिस्तानी तो they are more Pakistanis than Pakistanis. I'm going to say this to you, that you know, are these people who you're speaking to, are they if they're pure British, जैसे British born confused जो होते हैं, देसीज जो होते हैं, तो उनकी तो मेंटालिटी मुझे यही वाली मिली है. मगर except for some, there are some living in London as well. I know some very good families here. अब रिश्ता ना कराने बैठ जाओ, जवाब दो उसको. वो भी ऐसे उनको पता होता है कि हमारी जो वाइफ है वो काम करने वाली लड़की है. नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान से आई है ना. नो, वो ये समझते हैं उन लड़कियों के बारे में जो ब्रॉन एंड ब्रॉट अप वेस्ट की होती हैं. ये आई हैं पाकिस्तान से पढ़ के यहाँ, तो इनके जहन में है कि यार हम टीवी वाली चाहिए, या फिर नहीं है तो बना दो इसको हम टीवी वाली. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? 9 to 5 जॉब करोगी, यू वर्किंग फॉर अ वेल नोन कंपनी. इफ यू वर्किंग फॉर अ वेल नोन कंपनी, दे ऑफर करियर ब्रेक तो आपको चलो 6 महीने का या साल का मिल जाएगी. यार ये चीजें आप फरखंदा आंटी को कैसे समझाओगी? मगर नहीं, बात सुने, एक होता है वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन डू पार्ट टाइम वर्क, यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम. थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट आफ्टर कोविड. पीपल आर नॉट गोइंग टू go to the office space as much as they used to, because उनको समझ आ गई है कि it's cheaper to work from home. बहुत से मेरे जानने वाले they're working from home, बहुत से जानने वाले they're working part time. बहुत सी कंपनीज ने ऑफिस बंद कर दिए अपने, and they're not planning to go back. बट ये तो बड़ी आगे की चीज़ है. What I'm saying is, यार इतनी अच्छी आप जॉब कर रही हो, डिजाइन इंजीनियरिंग इज अ वंडरफुल फील्ड. ये फक कर देगी आपको. क्या डिजाइन करोगी जब दिमाग में मुबीन बैठा होगा? समझ रही हो? अबे भाई, करियर भी तो यार, शादी का तो मुझे ना कसम से. देखो, शादी भी इम्पोर्टेंट है. I'm not denying that. शादी is very important. But देखो, if you're finding a reasonable guy who is willing to understand, and नहीं मिल रहा ना, हर बंदा 2 हफ्ते बाद वही निकल आता है. वो कह रही है कि वो कुछ few weeks after into the relationship और talking he says this, ठीक है ना. तो you have to explain कि भाई 9 to 5 सिर्फ जॉब नहीं होती है. जॉब जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो हो सकता है. मैटरनिटी ब्रेक्स 1.5 साल तक के मिल जाते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. लड़कियां जो हैं वो उनको, और होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जहाँ तक बात है, भाई मेरे घर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो जो है वो अब जुनैद के घर की नहीं है. हम लोगों के ऑब्वियसली घरों के माहौल, तो लड़कियां जो है वो सीख जाती हैं. दैट्स ऑल जो सीखने वाली चीज़ें होती हैं. भाई किसी घर में कम लड़कियां आती हैं, उनमें 2 सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, अगले में जाती हैं उनके 4 देवर और देवरानी भी होते हैं. एंड वो दैट्स टोटली डिफरेंट. लाइक हर घर के डायनामिक्स अलग होते हैं. Working women can only care about their jobs and will leave the kids at home no matter what. That's not true. I've worked and I've had kids all my life, and I've never had to leave my kids no matter what. And I've worked in London. I've worked in very good places as well, and there's never been a problem where I've not been able to give my kids, not been able to take care of my kids. And ये देखें, ये तो बिल्कुल बच्चे तो इतने शरीफ हैं. मैं कह रहा था गमीज खा लेते हैं, CBD गमीज मंगाते हैं बाप बेटे.
हाई हो जाते हैं खा के। यहाँ तो बाप बोल रहे हैं भाई हाई हो जाओ, नहीं तो शरीफ बच्चे हैं। नहीं यार, लाइक इस ये कि यार ये तो बहुत ये यार बहुत टिपिकल मेंटालिटी है। I think देखो these are red लाइक flags. If मेरा, somebody is saying कि mothers who don't stay at home and make bad kids हाँ, who get into so drugs, they're that's actually जहालत है। they are actually, it is very offensive to your mother, right? ये तो आपकी अम्मी की तजलील नहीं कर रहे कि दे आर अज्यूमिंग कि अगर वर्किंग वुमेन के बच्चे सही नहीं होते तो आपकी माँ तो वर्किंग वुमेन है, तो बोलो आपकी तो होने वाली सास भी वर्किंग वुमेन है, तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से मैं सही औरत नहीं हूँ, तो जब मैं सही औरत नहीं हूँ तो क्यों मुझसे शादी कर रहा है? भाई जा अपना काम कर। Absolutely. दिस इज और दूसरी चीज़ ये कि यार पाकिस्तानी और नो लाइक पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी लिविंग एनीवेयर, मेरा ये है कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़ जाते हैं वो अपनी सब चीज़ें छोड़ जाते हैं, लेकिन वेरेवर दे गो उनकी फेसबुक में कोई सूजन नज़र नहीं आती, कोई एंड्रयू नहीं होता, कोई जॉन नहीं होता वही शफीक, मुश्ताक, इम्तियाज़, यही नाम होते हैं, राइट? वो अपना सर्कल नहीं बढ़ाते और अबे ARY देख रहे होते हैं, वही साबिर शाकिर चल रहा है न्यूयॉर्क के हर घर में, तो वो देर फार मोर पाकिस्तानी देन पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तानी। जहाँ पे मैं जिस एरिया में रहते हैं वो करीब वाला हमारा जो नहीं है देसी एरिया जो है, वहाँ पे एक सैलून में मैं गई तो वो पोलिश लड़की बेचारी पेडिक्योर कर रही थी, वहाँ पे आंटी कह रही हैं बिकम मुस्लिम, आई विल फीड यू डिनर। खैर हमें तो दुनिया को भी तो मुसलमान करना है ना, वो भी बड़ा So इम्पोर्टेंट काम really है। these some of these questions whereby some of them are genuine concerns कि तुम अगर इतना full time काम करोगी तो who's going to take care of my kids, do you know home responsibilities, these are genuine concerns, ठीक है ना? हो सकता है कि आप outgoing personality क्यों उनको लगता है कि जी आपको एक चिकन का सालन बनाना नहीं आता, कोई you're not good at या काम के बाद बाहर में जाएगी या कोवर्कर के साथ, मतलब ये कर सकती है, ये मतलब दे कुड बी जेन्युइन कंसर्न्स, ठीक है ना? मगर ये स्टेटमेंट्स जो है ना, दीज आर सूपिंग स्टेटमेंट्स कि मदर्स हु डोंट स्टे एट होम मेक बैड किड्स हु गेट इनटू ड्रग्स। नो देन ऑफ यू गो, we don't speak then. If that's what you think, then don't speak to a woman who's working. Go find yourself some villager. इसीलिए जो है, हाँ इनको भाई इनको वो गांव देहात वाली चाहिए जिसको चमाटे भी मारे। ये पता है क्या करते हैं, ये बाहर लेकर आते हैं और पहली फुर्सत में पासपोर्ट छीन लेते हैं और फोन भी नहीं देते। कितने केसेस हैं यहाँ पे, लड़कियों को फोन नहीं देते कि उनको ये नहीं पता कि जी थाना कौन सा करीब में, 2 साल 3 साल एक ही घर के अंदर बंद। There was a lady I knew, वो मेरी जो एक्स नेबर थी, शी वॉज अ केयर टेकर देयर, उस बेचारी की साहिवाल की थी वो। उसकी स्टोरी ये थी कि उसने अपने खालाजाद भाई से शादी की, शादी करके मैनचेस्टर आई, 7 साल शादी रही, जब बच्चे नहीं हुए उसको नौकर की तरह इस्तेमाल किया। शी वॉज गोइंग टू हर मदर पास्ट अवे, तो शी वॉज लीविंग, निकलते फादर इन लॉ ने कहा हम तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, आप बस साइन कर लो। She was signing her divorce papers and she didn't know she was doing that. Shit. That's how disgusting some people can become over here. So you have to be very careful who you're getting married to. नहीं खैर एटलीस्ट ये तो पढ़ी लिखी हैं, डिजाइन इंजीनियर नहीं, but these are red flags. लाइक These are हाँ stupid नहीं यार statements. ये फजूल लोग हैं Working भाई। women only care about their job. Well, how do you know that? These are statements. Yeah, the questions and the concerns, yes, do entertain भाई इतना them, हो सकता है मगर कि हाँ not कि the statements. देखो अब जैसे मुझे लास्ट टाइम वो आया था एक सवाल शिया सुन्नी शादी से रिलेटेड, ठीक है ना? तो उसमें तो आई अंडरस्टैंड कि लाइक यू हैव टू टॉक अबाउट फ्यूचर कि भाई कल को बच्चे होंगे तो बच्चों का सेक्स क्या होगा, क्योंकि फिर इन मामलों में लोग फिर सेंसिटिव हो जाते हैं आगे जाके, राइट? ठीक है, सो कंसर्न होना ज़रूर चाहिए कि भाई फिर वर्क लाइफ बैलेंस क्या होगा और बच्चे ये वो, मगर स्वीपिंग स्टेटमेंट जैसा कि आपने भी कहा कि जी काम कर रही है तो चालू होगी या शहवार होगा इसका बॉस, इस्लामाबाद मीटिंग करने जाएगी, हैं बटन लगा रहा होगा वो शर्ट के एक सीन के बाद, मतलब ये फजूल की चित्ते की। बोलो भाई ये थिंकिंग जो है ना पाकिस्तान ले जाओ और उधर ही रखो, खुदा के वास्ते इस मुल्क में ना लेकर आओ। सो भाई ये रेड फ्लैग्स हैं, इनको खली वल्ली करें, आप आगे देखें और पता है क्या ओ भाई या मैन लाइक फकिंग हेल मैन, एस कर रही हैं आप यार जिंदगी में, यूर killing it. I'm so proud of you and your mom and your family, like they should be well proud of you. क्या जबरदस्त देखो ये होती है पौध, अच्छी फसल लगाना इसको कहते हैं। This is what I really admire. ठीक है, इंडिपेंडेंट बच्चे और अपनी जगह सेट हैं, अच्छे काबिल बच्चे, यही फ्यूचर है हमारे मुल्क का। और कोई चूती आके लग जाएगा जिंदगी में, काम बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, ठीक है, बच्चों के आगे फिर औरतें बेचारी ब्लैकमेल हो जाती हैं, फिर वो इमोशनल हो जाती हैं, वो कहती चलो यार मेरी औलाद की खातिर। औरतें हैं जो मेडिकल की मतलब 88,000
like women who are doctors Doctors. who are not practicing. हमारे मुल्क में जहाँ वैसी 14 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, बल्कि ज्यादा, तो वहां पे सब fucking crime. आपको पता है पाकिस्तान में डॉक्टर जो है ना 1-2 लाख में बन जाता है, जो कि दुनिया में करोड़ों रुपए लग जा, करोड़ों तो खैर नहीं, मतलब करोड़ों से ऊपर ही लग ही जाता होगा ना अमेरिका जैसे मुल्क में. चलो यहाँ तो एजुकेशन फ्री है, लेकिन मेडिसिन आई डोंट थिंक फ्री है यहाँ पे. सो लाइक पाकिस्तान में तो इट्स हेवीली सब्सिडाइज. अरे मेरा बीए 6,000 रुपए में हुआ था. कैन यू इमेजिन? ग्रेजुएशन मेरा 6,000 रुपए में हुआ था. 2005 की बात है, 4-5 या राइट. हेवीली सब्सिडाइज इज फकिंग क्राइम. सो बिला वजह आपकी जिंदगी ज़ाया होगी भाई. ये देखें, आपने ये जो बात लिखी ना कि फ्यू वीक्स आफ्टर द टॉकिंग, ये वीक्स नहीं भाई, ये आवर्स होने चाहिए. व्हाई यू And I wasting your think time? you should draw the line and you should be the one asking the questions. Okay, listen, there's one thing that I need to clarify हाँ, before we भाई take this वो to step 2. हाँ, I will not be. बुलेट पॉइंट्स नहीं, थोड़ा सा वो हार्श ना है. हमारे मर्दों को ना वो फिर इस तरह की औरतें नहीं पसंद जो कि ओपिनियनेटेड होती हैं, जो कि फर्म होती है ना कि भाई ये मेरे पॉइंट्स हैं. ये ऐसे नहीं, प्यार व्यार से कि भाई ओके आपके इस बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि देखो मैं तो काम कर रही हूँ और मैंने जो है ना मूली के पराठे बनाने के लिए तो मैंने डिज़ाइन इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी, राइट. तो अब बताएं क्या करना है. तो थोड़ा सा फर्म, थोड़ा सा प्यार व्यार से करके ना शुरू में ही. आपको बताऊं एक बात, आई रिमेंबर इंटिमिडेट हो जाएंगे बॉयज. नहीं, वो इंटिमिडेट का तो होते हैं तो हो जाए भाई. हाँ, you don't deserve these strong man will chutias. not get intimidated. He's देखो going to appreciate this. Exactly, बैठा हुआ है ना यहाँ पे. बहुत ज्यादा. High value man. तो a strong man is not going to be intimidated by you saying to him कि you know what. वो तो बोलेगा जाओ और काम कर और अच्छी मेहनत कर. Yeah, I'm proud of you. You know, Thank like you. अच्छा उसको कह रही रही हूँ. वो बंदा कहेगा कि I'm proud of you if you know आप design head बन जाओ at some point in life. You know that would be really good. वो करियर ओरिएंटेड आदमी होगा, वो तो आपको सपोर्ट करेगा. What you need right now in life. देखो पार्टनर क्या होता है, हमें क्या चाहिए. हमारे यहाँ शादी, we focus on weddings, we don't focus on marriages. But wedding बड़ी कर लो. यहाँ मछली के वियतनाम से मछली आ गई और फलाना लबे सीरी खा लो, बहुत मज़ा आ रही है. यहाँ इन चीज़ों पे जोर है. शादी कैसे चलानी है पता ही नहीं है किसी को, राइट. तो एडेड मिजरी बन जाती है. यू डोंट नीड मिजरी इन लाइफ, यू नीड सपोर्ट. देखे आपकी किश्ती इस वक्त बेहतरीन चल रही है पैसिफिक ओशन में. व्हाट यू नीड इज अनदर टर्बो इंजन. आपका इंजन बिल्कुल सही चल रहा है, यू नीड अनदर इंजन ताकि थोड़ी और स्पीड से जाए. यू डोंट नीड अ फकिंग एंकर के वो आपको वहीं फंसा दे. कितनी अच्छी मिसाल दी है ना मैंने. यू डोंट नीड एन एंकर. यार देखो ना यार, ये आ रही है बस. सो या मैन, आप and your family will also understand. They've educated a lot. They are going to understand. Please just make it clear. Don't drag it to that level. वरना you're going to get really tired as well. पहले ही या तो खुद ही बता दें, या अगर आपको लग रहा है कि असर्टिव होने से किसी की फ्रैजाइल ईगो ब्रेक हो जाएगी, तो यू नो लाइक इन द फर्स्ट कपल ऑफ कॉन्वर्सेशंस just you know have this chat as well that I'm not going to be leaving my job. However, I will be trying to balance my work and life once we have kids, और responsibilities जो है ना वो तो जब आएंगी तो I will deal with them. पाकिस्तान के मर्द कितने strong enough to be here on my own in London after studying from Pakistan. I'll be strong enough to move into a house and take care of it as well. बस खत्म. Just make it very clear. यार पाकिस्तान के मर्द कितने है ना, कसम से इंटिमिडेट हो जाते हैं ना. अबे काम, पढ़ी लिखी और काम वाली औरत तो भाई सर पे बिठाओ. जबरदस्त भाई, बिल्कुल. अब इसमें ईगो कि नहीं हम औरत की कमाई नहीं खाते. अबे अजीब लोग हैं यार, क्या बोले अब इनको. खैर, सो या मैन, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड इन लोगों पे टाइम नहीं ज़ाया करना. ओके जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. वैसे ही घंटे से ऊपर हो गए बट इट्स फन. Assalamu alaikum, hope you're doing well. I'm writing to you because I can't talk to anyone else about this matter, and I have faith that you will give me your honest opinion as you always do in your videos to people who ask personal questions. So here's my background. My husband, let's call him Ali. Ali and I are childhood sweethearts, and we have been happily married for over 30 years. We live in New York and have a son. We have a relationship unlike any other I have seen in my life. Okay. We still love each other madly and try to spend as much time together as we can because that is what we enjoy the most. We don't like to socialize. We have had lots of ups and downs in life, but never in a relationship. And we had a wonderful life. Ali is an extraordinary man who is loved and respected by all. He is extremely kind-hearted, loving, caring, understanding, and helpful. He is the Jaan of the Mehfil. अच्छा, वो नहीं होते अंकल जो लतीफ़े सुनाते सारी आंटियों को बिठा के बीच में, उस टाइप के लग रहे हैं मुझे. इफ अ पर्सन मीट्स हिम वंस, दैट पर्सन इज श्योर टू फॉल इन लव विद हिम, वेदर इट्स अ मैन
Acha, just kidding. I mean, men also respect and admire him or a woman. He's a lawyer, so he gets to meet a lot of people. A couple of years ago, there was a case in which he had to consult another lawyer, a woman. Let's call her Samina, in another state. तो अली और समीना की कहानी है. They had to contact regarding some case that he was working on. After that, Samina started referring cases to him that she thought she could not handle herself. They developed a good working relationship over the phone. Samina did not have a happy marriage and she had low self-esteem. That's a recipe of a disaster for a disaster, huh? She also was on medication for depression. Okay. She started seeking advice from Ali regarding her personal life as most people do. Gradually, she became totally dependent on him. She considered him her mentor and would seek advice on each and every step she took in her life. And Ali would also share personal matters with her, especially about our relationship. That's not good. Samina began to worship my husband and got involved with him, and Ali also got involved with her. The interesting thing to note is that Ali's attitude towards me never changed, not even the slightest bit. Remember, he never even met her. This was all going over the phone. अच्छा वो सिर्फ तुम नहीं थी फिल्म अनिल कपूर के भाई की वो जो खत ही लिख रहे थे एक दूसरे को खत ईमेल से भी पुरानी खत लिख रहे थे वो फिर स्वेटर बना के भेजती है उसको दीपक वाला उसका नाम दीपक होता है यार मुझे कितनी चुप्पे की फिल्में याद है like this was my life pre-internet. You can ask about any stupid 90s movie. There was a movie called Lambu Dada. Oh God! And you were उसमें watching it? कबीर बेदी उसमें था and Kabir Bedi is really tall. Kabir Bedi is very good looking. हाँ, I'm not denying that. I'm saying उसमें था वो. हाँ, तो वो लंबू दादा था. So they tried to make like वो शहनशाह टाइप की फील देना चाह रहे थे, but it didn't work. So वो जब भी आता था ना सीन में तो पीछे से ना वो म्यूजिक आता था लंबू दादा. So I fucking watched that movie. Why the fuck have I watched that movie? कल देखते हैं वो Amazon No, Prime. thank you very much. Okay, back to Ali and Samina. A few months ago, Samina revealed to Ali that her husband was physically abusive, habitual, and she had decided to divorce him. She had tried to do that a couple of times earlier, but this time her extended family also supported her, which they did not before. I had been feeling awkward during all this time, but I thought she was a married woman with 2 kids, and I never felt threatened. That's very wrong. I mean, a child and a wife never stops anyone. After Ali told me that Samina sought divorce, I got a bit suspicious and checked his phone, and I found messages that confirmed my doubt. I was shocked and devastated. When I confronted Ali, he seemed shocked too and said that he had no idea how this relationship with Samina had gotten to this point. अच्छा पता ही नहीं है साहब को चल पड़ी पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया. He said he was not in love with her the same way that he was in love with me and that it was more respect and affection and sympathy. Do you buy this? I'll give you my thoughts in a bit. I told him that he would have to totally cut off from Samina or I would leave. Since Samina was going through a divorce and in a vulnerable position, he asked me for some time to make Samina understand that it was over. At that point in time, she had filed for divorce but it hadn't gotten through yet. Ali told me that he had nothing to do with her divorce and I believe that because of the kind of a person he is. Okay, you can trust Ali but you can't trust Samina. No, you can't even trust Ali when he's broken the trust. Okay, but okay. Yeah. In fact, he had stopped talking to her and said to her that he did not want to influence her decision in any way and she needed to decide on her own and weigh all pros and cons, and he never gave her any advice in this regard. He never promised her anything, but it seems she had already decided she wanted to marry my husband. Oh my God. She had already done that in her mind and heart. अच्छा वो टिपिकल पाकिस्तानी ना वो लड़की को लिए आप दरवाज़ा खोलो तो बच्चे का अकीका भी बच्चे का नाम भी रख लेती है अकीका भी रेडी हो जाता है. When Ali told her that I had discovered about their relationship and that they would have to call it quits, she just did not listen. Oh पीछे पड़ गई. She said that she did not want Ali to divorce me but she wanted to marry him यानी दूसरी शादी, and she insisted that 4 शादियां were allowed in Islam. But they're not allowed in the US. So yeah, okay. And being a lawyer, they should know that. Yeah, she should know that. She was breaking the law and the law of the land applies even in Islam. Islam. So okay. Ali told her that देखा मेरी बीवी की टोन चेंज होती है दूसरी शादी पे. Ali told her that she could never do that, not with the kind of relationship he had with me, which, as I already told you, is not an ordinary marital relationship.
Anyway, the situation now is that Ali doesn't call or text her. If they used to call each other 6 times every day, now she calls once a week. But the problem is that I want her out of our lives for good. Ali is a bit hesitant because of her mental health issues that she might attempt suicide. That's not your problem. I believe this can only be over by totally cutting off from her, and Ali thinks it is okay to talk with her once in a while as a mentor and nothing more. I don't think that is possible now, and I will never be at peace if this goes on, no matter how harmless. So, here are my questions. What do you think is the solution to this problem? Do you think a happily married man can be in love with another woman at the same time? Why? How? What the fuck? I just don't get it. Number 3. Ali believes that for a man to really fall in love, physical presence of that woman is essential. Meaning meeting that woman is a must. Ali and Samina never met or video called. What do you think about that? Thank you for taking your time to read this. I appreciate it. Look forward to a reply from you in your video. Keep the good work. Stay safe. God bless you. हाँ जी, Ali and Samina. I don't understand how such intelligent people can do such stupid things. मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये बात कि मतलब वो कह रहे हैं कि जी you only fall in love when you're physically together. No, what he's doing is he's cheating. He's clearly cheating on her, and yes, it has started as sympathy. He's probably got a lot of sympathy for her. He loves his wife. Obviously, he's the mother of his she's the mother of his child, so he loves his wife. एंड वो ज़्यादा सिंपथी है आई थिंक. और ये एक वक्त कॉल कर लें और आधे वक्त कॉल कर लें. फर्स्टली यू नो ही इज़ ब्रोकन योर ट्रस्ट, सो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली के. एंड यू नो लाइक एज अ वुमन आई एम टेलिंग यू कि बहुत एक फेथ टूट जाती है when that sort of thing happens and you feel कि you know what मैंने इतने सारे साल दिए अपनी ज़िंदगी के इसके अंदर and this has broken my trust. So please acknowledge firstly that you are hurt and your relationship is not, I'm sorry to break this to you, but it's not as strong as you thought it was. That's an illusion. I'm या really तो sorry आपको for saying this. अपनी नज़र लग गई है. जिस तरह आपने इस ईमेल में भी 5 बार बोला ना कि हमारी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है, अगर होती तो ये आपकी ईमेल मेरे पास ना होती. This is what I think. All right, I strongly agree with that. कि, you know, like I mean, I'm sorry that you're going through this. Mother, please firstly acknowledge that your marriage is in trouble because of this woman. She knows that he's a married man and she's, you know, she's involving herself. वो शादी की बात कर रही हैं and he's saying कि he's not in love. Also, I think कि he must have led her on a bit to कुछ तो किया होगा कि उसको ऐसा impression पड़ा कि okay मैं यहाँ पे. And though he was not involved or she claims that he wasn't the reason for divorce and she was in an abusive marriage, this was definitely a catalyst to break your marriage. भाई to वो break his marriage. होता है ना कि sorry, her marriage. when you see जब आपको दूसरा बंदा नजर आ रहा था कि यार देखो ये भी तो मर्द है, कितना अच्छा है, कितना स्वीट है बीवी के साथ, मेरा कितना बुरा है, तो वो एक इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट. नहीं, और ये मुझे लेने को भी तैयार है. ही इज रेडी टू एक्सेप्ट मी. ही इज अ वेरी गुड मैन. जैसे आपने कहा महफिल की जान. अच्छा, आपने जो हाँ वही ना मैंने जो बोला ना आंटियों को लतीफे सुनाने वाले अंकल वही वाले होंगे. एनीवे, नॉट जनरलाइजिंग, आई एम जस्ट जोकिंग. अच्छा, आप ये जो कह रही है ना दे नेवर मेट और वीडियो कॉल, हाउ डू यू नो? मुझे ये भी शक हो रहा है कि यू नो व्हाट दे हैव मेट. मगर देन अगेन इतनी फेथ है यू नो द लेडी हु इज रिटन. भाई ऑफिस में जाके वीडियो कॉल कर ली होगी या वो कितना अगर वो वीडियो कॉल के बगैर कैसे इतना बड़ी कमिटमेंट दे सकते हैं? लॉयर्स हैं ये लोग. हाँ एग्जैक्टली. दे हैव लुक्ड एट द इन्स एंड द आउट्स. डू नॉट प्लीज. यस, दे हैव लुक्ड एट द इन्स एंड द आउट्स. उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है. शादी की कमिटमेंट हो गई है यहाँ पर कि तुम मुझसे दूसरी शादी कर लो. You know, so नहीं, वो तो कह रहे हैं वो खुद आ रही है, मैं तो नहीं बोला दूसरी शादी को. और अगर हो भी जाती है आ रही है तो आप उनसे जाके खुद ही बात कीजिए, उनकी गलतफहमी दूर कर दें कि वो आ नहीं सकती हैं. भाई you speak to the lady. Her mental health is not your or your husband's भाई problem. जब से इन लोगों ने काम करना शुरू किया साथ, आप जरा अपने हस्बैंड की ट्रैवल हिस्ट्री तो देखें. कहाँ कहाँ फ्लाइट लेके गए, कहाँ कहाँ मीटिंगों का बोल के गए, या कहाँ कहाँ लॉन्ग वीकेंड का बोल के गए, या आई एम प्रीटी श्योर दे मेट. ये ना अंकल कह रहा हूँ, मतलब मर्द जो होते हैं ना, वो इतनी बड़ी कमिटमेंट दूर खाली व्हाट्सएप पे नहीं दे देते, ठीक है ना. या तो वो आ भी सकती हैं, हो सकता है वो आ गई हो. वही कह रहा हूँ ना, वो आई होंगी, वो भी आई होंगी.
So I really think that you need to look a little bit deeper in खैर this लाइक मैं कोई and आपके दिल में कोई शक नहीं and प्लांट कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग मगर you have to एज अ be मैन आई एम realistic. टेलिंग दिस, मैं तो कभी इतनी लंबी कमिटमेंट ना करूं खाली व्हाट्सएप पे, और also you know I think you मैं need तो to इन्स एंड involve आउट्स करूंगा है क्या. मैं टांगे ना तोड़ दूँ तुम्हारी. नहीं मगर to be honest I really think I'm so sorry कि you know you've been through this really happy what you thought was a happy marriage, ठीक है ना, and this has happened and देखें वो भी इंसान है. I'm not going to say कि marriages repair नहीं हो सकती after a mistake, मगर then of course there has to be initiation from his part कि you know he has to stop, he has to dump this woman. अच्छा ये वाली जो बात है ना कि हफ्ते में एक बार कर लेंगे, ये फजूल बात है. फिर इट हैज़ टू स्टॉप. वो देखें अगर वो वाली बात है ना, कैंसर को जड़ से निकाला जाता है, थोड़ा सा छोड़ते नहीं है डॉक्टर के, वो फिर फैल जाता है. सो इट इज़ लाइक अ कैंसर, इट इज़ लाइक अ ट्यूमर. जैसे अगर आपने कोई Addiction है वो. एडिक्शन है ना, जैसे आप सिगरेट्स हो गई या आपके कोई और नशे हो गए, यू कांट बी लाइक कि अब मैं हफ्ते में एक बार किया करूँगा. नो, इट हैज़ टू फकिंग गो इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट. तो वो फिर हफ्ते में एक बार से हफ्ते में 2 बार हो जाएगी, फिर 2 से 4 और फिर 4 से हाँ, 6 हो नहीं वो जाएगी. आज उनको डिप्रेशन का बाउट पड़ा हाँ, था, तो उन्होंने exactly. मुझे फोन कर लिया, so she really needed to show हाँ, cry on. हाँ, Do not entertain this nonsense. हाँ, ये थोड़ी रुकेगा कभी. ठीक है ना, वो ये this बोलेगे is not going to stop. लाइक भाई मेंटल ब्रेकडाउन हो गया या पैनिक अटैक हो गया, उसका कोई स्केड्यूल थोड़ी नहीं होता है कि नहीं, हर और ये पता सैटरडे है को क्या, होगा. the longer you leave this, even if you allow it, if you have that sort of faith, I mean, good on you, and you're saying कि नहीं Ali is not never going to get involved with this woman. But that's what you believed in, ठीक है and ना? look where you are. ठीक है, so I mean whatever it is, you have to tell her to get lost. ठीक है, you have to tell your husband. देखिए उस औरत की गलती नहीं है, आपके शौहर की गलती है. He's let it happen to this stage. He should अबे have cut off ties. खाली मर्द पे ना डाल दो, ये नहीं, फेमिनिज्म नहीं, बोल रहा है अब आपका. नहीं, वो भी ये तो आ रही मर्दों थी. की- नहीं वो vulnerable थी. ये सही है. वो vulnerable थी, ये happily औरत married चीट थे. करे तो वो वल्नरेबल थी, ये- मर्द चीट करे तो चूती है. नहीं देखो ये मर्द ये हैप्पीली मैरिड थे. हाँ तो वो तो थी खराब शादी में ना, हाँ तो वो तो वनरेबल थी, इसलिए वो ओके वो उसको वो हो गया कि ओके फाइन ठीक है, मुझे आई एम गेटिंग समवन हु माइट एक्चुअली यू नो हेल्प मी इन लाइफ. तो गलती जो है वो मोस्टली आपके हस्बैंड की है. मर्दों पे डाल दो भाई, मर्दों पे. You अच्छा get चलो rid डाल of दो this मर्दों. woman. You get rid of this woman and you'll have to take charge, or you tell your husband as well. जो उनको आप मेरा कहते हैं, नंबर दें, ठीक है ना, you have to do this. You have to take a stand for yourself. उनको बोले and your अली का child. नंबर चेंज हो गया, अब ये वाला हो गया, अब इस पे बात करेंगे. और उनकी आवाज भी थोड़ी मतलब चेंज हो बच्चे गई. हैं, ये मजाक समझा भाई कि जहाँ पे जाके यार अच्छा 30 काम साल हो के गए लिए- शादी को, तो 50 के तो होंगे. बच्चा बड़ा है होगा, चलो 25 का बच्चा है, you know why you putting your kids and your wife in this लाइक difficult दिस इज लाइक position. अभी अल्लाह अल्लाह करें, अब छोड़ें बाबा. अली साहब हो गया बस उनसे बहुत. बस ये कहिए कि भाई बिल्कुल कट ऑफ होगा, ठीक है ना, वरना आप वहीं जाके रहिए. बोले अब इंशाल्लाह जन्नत में मुलाकात करेंगे, मेरी रूह तुम्हारे पास रहेगी. ये वाला मैसेज करके ना ब्लॉक करवा दें. उनको ब्लॉक करवाएं एंड देयर इज ये बिल्कुल भी ना हो. एंड ऑल्सो आई फील कि यू नो यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ मिस्टर अली एज वेल. उनसे ज़रा सा टाइम ऑफ लीजिए, find your interests and whatever it is, because he has let you down, so you should actually teach him, you know कि Are you saying in code words कि don't have sex with him for a while? no I am saying I am not just saying that. वो तो Women बिल्कुल use भी that as a weapon. बिल्कुल भी नहीं, but you know like I think you need to take time off and you know you need to tell him कि भाई ये मेरी जिंदगी है, मेरी शादी है, और ये कोई मजाक नहीं है जो आपने किया है. हाँ थोड़ा तो गुस्सा दिखाए ठीक है ना, तो बोले ये थोड़ा क्या सा ये है. नहीं कि ओ जी अली ये मेरे क्या साथ ऐसा जी? अब दोबारा से नहीं कर सकते. नहीं ये अभी हुआ है, दोबारा भी कर सकते. मतलब काम वाली जो है घर वाली बनने लग गई थी है. This is not right. This is absolutely you know not right at all, and please just get rid of this. And दूसरी बात ये कि मोहतरमा को उनको भी पता होना चाहिए कि it's illegal. Bigamy is not allowed in the West. So how dare she think कि उनकी दूसरी शादी हो जाएगी and they will live. भाई वो अब मौलवी वाला करा देते ना निकाह, वो वाला नहीं कराते, पेपर वर्क वाला. बर्मिंगम में होता है. हाँ. हर दूसरे घर के अंदर. That's so वो disgusting. तो वो मौलवी वाला करा के रह लेंगे साथ. नहीं पता चलेगा बाइडेन को. वैसी स्लीपी जो है वो तो सो रहा है, उसको क्या पता. नहीं बट यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस. एंड अगर आपके मियाँ नहीं हो रहे तो उनको भी जरा सिर्फ मियाँ के कहने पे नहीं, डोंट ट्रस्ट हिम अगेन फॉर अ लिटिल वाइल एंड गो फॉर काउंसलिंग. You know, after you've taken your break, you need to go for counseling and you need to get this mended.
अगर आपको इस शादी में रहना है तो दिस हैज़ टू बी मेंटेड एंड देयर हैज़ टू बी बाउंड्रीज के भाई आप आइंदा किसी भी खातून से इस तरह से फ्री नहीं होंगे. You know, like obviously, clearly he doesn't know his boundaries or he doesn't know how to set them going out or letting people. लाइक वर्किंग रिलेशनशिप को घर की रिलेशनशिप बना दिया ना, तो मतलब बिल्कुल. बाउंड्रीज जो है ना वो दूर दूर रहनी चाहिए. और वर्किंग आवर्स में ही जो भी काम की बात है, ये नहीं कि जी सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज आ रहा है साथ में हैव अ नाइस वंडरफुल डे ऑफ फन, माशाल्लाह प्यारे लग रहे हो जी, है, और वो फूल आ गए ना मरे हुए. अबे मरे हुए फूल आते सुबह सुबह, वो मरून कलर के गुलाब, भेड़ मरून कलर का गुलाब कब्रों पे होता है वो. अगले दिन किसी की कब्र पे जाओ ना, एक दिन पुरा कब्रिस्तान कभी जाओ, तो जो एक दिन पहले लोग फूल डाल के गए होते हैं ना, जो कलर उन गुलाबों का होता है, उस वो वाले गुलाब व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं. अबे गुलाब लाल होता है, मैं तो तुम्हें मरून. क्वेश्चंस पढ़ के जो है तुम जो है ना वो खुद डिस्टर्ब नहीं हो जाते? ऑब्वियसली आई डू. आई मीन लाइक या मुझे वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. मुझे हाउ डू यू फील? I literally I felt my blood boil. मुझे गुस्सा आया है at you know the devastating state that men have put women in. और ये सिर्फ 4 ईमेल्स थी. सोचो अभी कितनी है इसमें टोटल. लेट मी सी. It's just so sad. It's just very very sad. You know, पढ़ी लिखी लड़कियां उनके करियर्स 4861 ईमेल्स. How many dreams are these people killing? रोज का है, रोज है, रोज आ रही है, ये आ रही है, रोज आ रही है. इट्स जस्ट सो सैड. मुझे बस ये गुस्सा आता है कि यार लोगों के क्या मसले हैं. चलो ये तो खैर एक हर जगह का ही मसला है, मगर जैसे वो पिछली ईमेल थी, औरत का लड़कियों की करियर बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं. दिस इज बट रियली आई डोंट थिंक इससे वो करके इस बात से डर के जो है ना वो एजुकेशन ख़त्म होनी चाहिए लड़कियों में. इनफैक्ट आई फील के ओ भाई और ज़्यादा करें मर्द, ये तो चवल हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, ये आपको इंटर के बाद निकलवा देंगे कॉलेज से, बोलेंगे सब सही हो जाएगा. फिर इनको जैसे अंकल को 30 साल बाद कोई और मिल गई तो आपको फिर बच्चों समेत घर से बाहर, फिर ना आपको कभी कोई काम किया हुआ है, ना आपके पास कोई डिग्री है, ना तालीम है, ना कोई स्किल है. फिर आपको ना भाई पूछेगा ना बहन पूछेगी, माँ बाप फौत हो चुके होंगे. ठीक है, फिर क्या करोगे? The best gift my parents gave me was they got me educated from where they got me educated, and that's the skill, that's the only thing I had in times of my जब मैं बहुत ही बुरे हालात में भी मेरे पास जो थी वो एक चीज़ थी, और वो थी मेरी वो उस prestigious university की degree. When you have education you can always bounce back. You can always bounce back. ये जो कहते हैं ना डिग्रियां बेकार हैं, it's always helped me. It's always helped my back. Of course it does. It's always helped my back. Career first भाई. you're the only person that you have. मैं तो ये मानता हूँ. अब इसको कोई आप बोलो कि सेल्फिश है, ये है वो है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू. आपका ख्याल रखने वाले आप खुद ही हैं. माँ भी एक हद तक ही करती है, बीवी भी एक हद तक ही करती है, मेरी वाली तो ज़्यादा करती है, मैं आप लोगों की बीवियों की बात कर रहा हूँ. मगर ये कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव योर ओन सेल्फ मैन. और अगर खुद का ही हिसाब किताब आउट है तो फिर सब आउट है. सो या मैन, सो दिस वाज द एपिसोड ऑफ टुडे. आई होप यू हैड फन एंड आई होप यू हैड फन. Yeah, it was nice. It was अच्छा, दूसरों की मिजरी पे फन नजर आ रहा है तुम्हें? शर्म नहीं आती? It's actually I feel sad, like I said, okay, all these women and but it's a nice empowering feeling when people reach out to you this way, and like you know, अगर मेरी बातों से किसी को एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है, नई दिशा मिल जाती है, नई डायरेक्शन मिल जाती है, तो एक सोचने का एक नया व्यू पॉइंट मिल जाता है. So I think it's a very good accomplishment. I think it is. Thank you. I try to keep up with the episodes. Sorry last week नहीं आई because I had just come here to my family, और आपको पता ही है, I was giving time to the kids. So don't forget to subscribe. I hope you enjoyed. और Patreon पे support कीजिएगा, patreon.com/kanjiswag, and see you next time. Hafiz. Stay blessed.